Please unmute your mics. Okay, so before this, nothing was audible to all. Students, are you able to unmute yourself or use your mics? Kindly confirm. स्टूडेंट्स का भी है माइक ऑन करना। Students, I am writing. Are you able to use your mics? Okay, okay. So we'll start from the starting. So what do you mean by data visualization? Sir, how would I able to add the background? Arun sir, I am not able to add the background which are suggested by the DU on my background. So okay, I'll start the camera then and I will share the background image. Okay. So first we were talking about the data visualization. So I want to know from you all that you had answered, ma'am, data visualization is analysis of the data and finding there is something which is an forward step. But when we initiate about this term, which is connected to your syllabus, the very first unit, what do you mean by data visualization? Anybody? You can give raw answer. There is no justification for just correct answer. Farheen, Jagjit, Mohit, Abhishek, Sadhya. Okay, your mic is not working, Chanchal. Is anybody mic working? Sadhya has typed yes. Sadhya, is your mic working in the meeting? Yes, ma'am. Okay. So, Sadhya, what do you mean by data visualization when we talk about this term? क्या समझ में आता है डाटा विजुअलाइजेशन टर्म से जो आप सब्जेक्ट अभी पढ़ने वाले हैं? मोहित के बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बताओ। बच्चे पूरा फर्स्ट यूनिट इसी से स्टार्ट हम एक इंटरेक्टिव वे में ही शुरू करेंगे कि जो आपको बताए उस नॉलेज को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, है ना? मैम प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Sir, I would turn on my camera, but I'm not able to modify the background as suggested by you. This is the concern by my side. मैम वी विल एडिट इन द नेक्स्ट क्लास, तो अभी तो आप इसको ऐसे ही स्टार्ट करवा लीजिए। अभी ऐसे यूज कर सकते हैं, there is no issue. No issues, ma'am. The background is Okay, clear now, so we have no issues in that. okay, thank you, sir. So when I was talking about the data visualization, we here talk about how your data is presented. ठीक है? Like you can see in your meeting, there is some tab about the text. There is an tab about the number of participants. There is a camera on each and everything. Fine. Let I would give you an certain idea. Fine. That you had an entrepreneurial activity. ठीक है, आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रेजेंट करना है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें, या फिर इफ आई बॉट अ चिप्स पैकेट फ्रॉम द मार्केट, तो उसके अंदर हम नोटिस क्या करते हैं बच्चे, क्या प्रेजेंटेशन होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर। फाइन। उसका कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वो पैकेजिंग में सबको देखने के लिए मिलता है। देखा है सभी ने बिस्किट चिप्स नमकीन के रैपर, कैसे डाटा उसमें प्रेजेंट होता है। यस मैम। ठीक है। बट इफ वी अब यहाँ पर बच्चे जब हम बात कर रहे हैं ना पैकेजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें जापान की पैकेजिंग ही क्यों सुपीरियर कंसिडर की जाती है? एनी आइडिया? दैट मम दिस इज द रीजन। एक्चुअली बच्चे क्या होता है, लेट सपोज दैट दिस इज देयर पैकेट। फाइन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट this is their packet. Fine. And the product size is this, so that will be same size will be printed on the packaging. So they this is the reason why their packaging is so much appreciated. See,
So you can give this case study in your data visualization. Fine. So this is about what we had seen in real world. If we came about this subject, data visualization, so in your initial year when you started learning maths, there had been a reason that you started using the data by preparing the histograms. Fine. By preparing your bar graphs, we would start from the same only. How we used to prepare the bar graph, how we used to prepare the pie chart, how we used to prepare the histograms. Anybody is clear about the bar charts and all? This is the very initial step. I'll just explain that. Is the screen visible to all? Is the notepad visible, students? Is the notepad visible to you? No, ma'am. Okay, so from next meeting we will also try to fix that notepad is visible to you, and we will draw and assimilate everything. Fine. So when we were talking about the data visualization, we would first start from the हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड दिस. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे कोई भी बताओ कि मैम ये होता है हिस्टोग्राम में, ये होता है पाई चार्ट में, एंड दिस. एनीबडी? बच्चे, बार ग्राफ कैसा होता है? कैसे प्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ में हम कोई भी डाटा? बताओ बच्चे. बार ग्राफ होता है एक, तो ये जो क्लास है दैट दिस इज ऑल अबाउट द डाटा. ओके, यू आर नॉट एबल टू यूज योर ओके माइक. Earlier you were able to use, Mohit? I could understand that there's so much repercussions in this first class. So we would make sure in our next classes, which is scheduled to be 23 and 24, I guess, we would resolve all this. And I am extremely not satisfied with this performance, but I'll make sure that in next few hours we will fix this, okay? So when we were talking about the data visualization, we had talked about the real world example, we had talked about the platforms. Now we had come from to the maths part. जब बच्चे आपने सबसे इनिशियल ईयर में स्टार्ट करा होगा तो बार ग्राफ्स होते हैं. बार ग्राफ्स क्या होते हैं कि आपका 0 से 10 के इंटरवल पे, 10 से 20 के इंटरवल पे किस तरीके से आप डाटा को अगेंस्ट द पॉइंट प्लॉट करते हैं, है ना, ऑन अ ग्राफ. आई हैड सम मैप. एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, तो सबको पता है बच्चे, अगर हम ज्योग्राफी की साइड बात करें तो उसमें हम परवेसिव लेवल पे बताओ डाटा किस पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, ज्योग्राफी पार्ट. ये स्टूडेंट्स आंसर. ज्योग्राफी में किस तरीके से आप डाटा प्रेजेंट करते हैं? क्या वो टूल होता है जिसमें आपने स्टार्ट करा होगा इन योर सोशल स्टडीज कि मैम यहाँ पर हम प्लेसेस को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेस्टिनेशंस को पॉइंट कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं. व्हाट इज दैट कॉल्ड? वेरी गुड, मैप. तो बच्चे, मैप, अब आप एक बात बताओ, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन. आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी इफ वी टॉक अबाउट द पोल्यूशन, तो उसमें क्या है कि हमारा ऑल इंडिया लेवल का मैप बना के वी हैड टू लोकेट द पॉइंट्स कि इट हैज एन AQI ऑफ दिस, इट हैज एन AQI ऑफ दिस. So this is the map.
फाइन. सो वी आर ऑल क्लियर्ड विद द मैप कि कैसे मैप पे हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल टर्म्स, तो मेजरली हमारे सब्जेक्ट में वही है कि हाउ वी यूज टू मेक बार ग्राफ, हाउ वी यूज टू मेक हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट एंड ऑल. फाइन. पाई चार्ट कैसा होता है बच्चे? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर. ठीक है, कि आप पूरे सर्कल पे किस तरीके से अपना डाटा प्लॉट करते हैं. हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ में आप नॉर्मली क्या करते हैं कि आपने डाटा प्लॉट कर दिया. एंड हिस्टोग्राम में क्या होता है बच्चे? रेगुलर इंटरवल्स पे डाटा प्लॉट होता है. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. अब आप एक बात मुझे बताओ कि अगर एक बुक है बच्चे, ठीक है, जिसपे पूरा थ्योरेटिकल आपको मेंशन्ड है कि दिस इज द टॉपिक, दिस इज द एप्लीकेशन, फाइन, और एक बुक है जहां पर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पर आपको चार्ट्स वगैरह भी गिवन है, हिस्टोग्राम्स वगैरह भी गिवन है, तो आप कौन सा बुक प्रेफर करेंगे? वो जिसमें कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, या फिर वो सेकंड ऑप्शन जिसमें आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपका चार्ट्स वगैरह भी गिवन है कि दिस इज द डाटा, दिस इज द परफॉर्मेंस? बताओ. वेरी गुड, सेकंड बुक. व्हाई? बिकॉज बच्चे मैम नो. जिस बुक में ग्राफ चार्ट सब कुछ अवेलेबल हो थ्योरी के साथ. गुड. सो इसी पे मैं आपको भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई टेल यू. बच्चे जनरली क्या होता है कि चाहे कितनी अच्छी बुक है विद हाउ मच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपने वो रीड कर लिया, दिस इज प्रोसेस्ड इन योर माइंड, ठीक है, तो वो उसमें ना हमें ऐसा लगता है कि इनोवेटिव जो आइडियाज होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू द बुक जहाँ पर हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है विया द डाटा. उसके अंदर बच्चे क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि हमें डाटा मिला तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू चाहे थ्योरेटिकल कितनी एक्सप्लेनेशन और चाहे कॉम्प्लिकेटेड डाटा है. उसमें अगर हम पढ़ते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, वेस्ट बंगाल कितनी सीट है, अगर मैं उसकी आपको वर्टिकली लिख कर दे दूं तो आपको कभी शायद याद ना हो. बट अगर मैंने एक अच्छे वे में टैबलर वे प्रेजेंटेशन किया तो आपको याद हो जाएगा, हम दिस पर्टिकुलर स्टेट का इतना सीट है लोकसभा में, इसका इतना सीट है. द रीजन बी कि हमारा जो बच्चे माइंड होता है ना, वो पिक्चर्स को देख के और जो डाटाज हमें ऐसे विजुअलाइज करे जाते हैं उन्हें ज्यादा ग्रैप्स करता है. ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता था कि जो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, वो एक बुक को ऐसे देखते थे और उन्हें बस ये हो जाता था कि हाँ आई हैड रेड दिस बुक. द रीजन बीइंग बच्चे, क्योंकि वो जब उनकी इमेजेस देखते थे, ठीक है, उनके पीछे आगे पीछे का जो रिलेटिव शॉर्ट डाटा गिवन होता था वो देखते वो ग्राफ्स कर लेते थे कि इस बुक के अंदर पर्टिकुलरली क्या मेंशन्ड है. ठीक है, सो दिस इज द की व्हाई एम्फेसिस इन ड्यू नाउअडेज. आपके साथ इतने प्यारे रिफॉर्म्स आ गए हैं कि अब अगर आपकी क्लास होगी डिजिटल मोड पर होगी, ठीक है, अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस कितने बच्चों ने अटेंड करी हैं? करी है भी किसी ने अटेंड? एनी कॉलेज? ओके सादिया, you had attended in which college? Faculty of Social Science. Okay, and Chanchal, you? चंचल बच्चे आपने एंड्रेस किया, आपने कहाँ पर ऑफलाइन क्लास अटेंड की है? सेम. ओके, तो आपने बच्चे अब वहाँ ऑब्जर्व किया होगा कि अब आपके नॉर्मल बोर्ड्स के साथ स्मार्ट बोर्ड्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है, एंड उसका पर्पस ही बच्चे क्या है कि अगर आपको कोई चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो आपको जितना ग्रैप्स हुआ उसके साथ हमें आपको पिक्टोरियल मेमोरी भी दिखानी है. बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग का प्रोसेसर बच्चे ऐसा होता है कि हमने कोई चीज अगर थ्योरेटिकल वे में पढ़ी एंड एज कम्पेयर टू हमने उसका एक तरीके से रेलिवेंट डाटा देखा, पिक्टोरियल मेमोरी देखी, तो उसे हमारा माइंड जल्दी ग्रैप्स करता है. सो दिस इज वाई मैप कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे? ग्रीक्स. ठीक है, ग्रीक्स इज नोन एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी. उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने मैप्स बनाए तो उन्होंने ये देखा कि भाई एज कम्पेयर्ड हम जितनी एक्सप्लेनेशन बुक वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, अपने रिसर्च पेपर वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो मैप्स होते हैं वो ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, है ना. तो वैसे ही फिर मैथ्स में इवोल्यूशन आया कि हम इस डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे कि वो बेटर कनेक्ट कर सके सबके साथ. ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आया कि एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एज कम्पेयर टू आवर डाटा हमारा माइंड क्या ज्यादा कंसीव कर पाता है एंड व्हाट इज द इनोवेटिव वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन.
Fine. This is why we are studying this subject as a separate head, data visualization, because बच्चे इसका इतना ज्यादा न्यूमरस इंपॉर्टेंस आ चुका है कि डाटा को किस तरीके से बेस्ट प्रेजेंट करना है. अब आप एक बात मुझे बताओ कि इफ यू वेंट टू बाय अ रोल्स रॉयस, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या चीज सबसे मतलब अट्रैक्टिव लगेगी एज कंपेयर टू अ नॉर्मल टाटा शोरूम? क्या उनकी टेक्टिक्स होती हैं? एनीबडी आइडिया कि मैम ये होता है, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होती हैं, या ऐसा डाटा प्रेजेंट करते हैं? एनीथिंग? नो. ओके बच्चे, वहां पर पता है क्या होता है? आई रिसेंटली रिसर्च ऑन दिस कि आप गए वहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जब आप रोल्स रॉयस के शोरूम में जाएंगे तो वो आपको पर्टिकुलरली वहां पर कार्स दिखाएंगे. व्हाट दे विल शो यू द विजुअलाइजेशंस, कि पर्टिकुलरली 3D मॉडल्स होते हैं, कि आपको वहाँ टेस्ट ड्राइव नहीं मिलेगी बट आपको विजुअल्स मिलेंगे कि कैसे दिस इज द सुपीरियर, ठीक है, एंड कैसे इसके अंदर क्या क्या इंटीरियर्स होते हैं, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कौन लोग इन्हें बाय करते हैं. और अगर आपको उन्हें बाय करना होगा तो आप कहाँ पर जाएंगे? कि जहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ये स्ट्रैटेजी है बच्चे की, देयर कार इज कंपेयर टू द हेलीकॉप्टर्स, कि जो अपना प्राइवेट जेट ऑन कर सकता है, दिस कार भी कैन बी owned by them only, ठीक है. So this is why the importance of data visualization has increased nowadays, ठीक है. तो इस तरीके से जितनी भी बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, जितनी भी आप देखोगे लग्जरी ब्रांड्स हैं, या जितने भी लीडिंग हम बात करें आज की डेट में इंडस्ट्रीज हैं, सो दे आर विनिंग बाय देयर नॉट ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. अगर मैं बच्चे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करूं तो उसका भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है डाटा विजुअलाइजेशन, कि जो मार्केटिंग की टीम है वो अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रही है कि जो दूसरों से अलग लग रहा है ना. तो उसी वजह से वो एक विन फैक्टर उनके लिए बनता है. अगर आप अभी दिस यू आर इन योर 7th सेमेस्टर, फाइन, एंड इफ यू आर सपोज टू स्टार्ट एनी बिजनेस और एनी आइडिया और एनी प्रोडक्ट, तो क्या आपको दूसरों से अलग करेगा? प्रोडक्ट तो बच्चे है ये क्रूशियल फैक्टर. द अनदर फैक्टर इज कि आप अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं. कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमें कोई चीज नहीं भी अगर चाहिए, है ना, ठीक है, बट हमने उसका देखा कि उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसी है, और हम गए, हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं थी एंड वी बॉट इट. सो दिस इज हाउ द डाटा इज प्रेजेंटेड टू यू, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर. अच्छा, जैसे मैंने आपको बच्चे इतनी सारी केस स्टडीज बताई, वी हैड टॉक्ड अबाउट द शार्क टैंक, वी हैड टॉक अबाउट द रोल्स रॉयस एंड अदर एग्जांपल इन ज्योग्राफी हिस्ट्री एज वेल. आपके पास कोई एग्जांपल है कि मैम डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया एंड दैट कंपनी रीच टू दैट लेवल? या फिर अगर कोई कंपनी है तो उसकी ये की इंग्रेडिएंट है जो उसके डाटा विजुअलाइजेशन की सक्सेसफुल पॉलिसी दिखाता है? एनी स्टूडेंट? यस लर्नर्स, बताओ बच्चे. यस एनीबडी? वेरी गुड एग्जांपल, स्टॉक मार्केट. सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो अभी रिसेंटली मोदी जी का पॉडकास्ट हुआ था, किन के साथ हुआ था? फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ मोदी जी. एनीबडी? किसी को कोई हिंट है, कोई आइडिया है कि मैम इन्होंने लिया था? सो फाइन.
So did you know about the Nitin Kamat, the founder of Zerodha company? Anybody? Yes, that is Zerodha. तो बच्चे उनके साथ क्या है, ये Zerodha founder which is Nitin Kamat. तो जो नितिन कमाट है Zerodha के फाउंडर, ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने पॉडकास्ट करा आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का। कैसे? क्योंकि बच्चे उन्होंने वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद लिमिटेड नॉलेज उन्होंने क्या किया कि उनकी कंपनी में, अगर इफ यू विल सर्च अबाउट इट Zerodha, I guess there are only 40 to 50 employees working in that company, and it has generated an revenue of more than 4,000 crore. Right? So which is a tremendous achievement. और जब उनके अचीवमेंट की हम बात करते हैं तो आप ये देखो 40 एम्प्लॉय के साथ उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करा है, एंड दैट इज एंगेज इन स्टॉक मार्केटिंग। तो स्टॉक मार्केटिंग में भी सबसे ज्यादा बच्चे मैटर करता है कि आप अपने डाटा को, अपनी फिगर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, जैसे आपने बताया सोशल स्टडीज में आपने पढ़ाई करी कॉमर्स में, तो हमें क्या दिखाया जाता था? कॉमर्स में क्या सिखाया गया कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वी हैड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, वी हैड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो। आर यू कनेक्टिंग विद दैट? बच्चे कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया है आप सभी ने? ओके गुड जगजीत। एंड यू चंचल, सादिया, फरीन? ओके। तो बच्चे जब आप अपने सब्जेक्ट से थोड़ा, मैंने बताया ना कि हम अपने ग्राउंड लेवल से पहले कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, तो मैं से हमने कंपैरिजन स्टार्ट करा। जो हम अकाउंटेंसी पे आते हैं, तो आपने जब सीखा सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बनाना, अपनी एंट्रीज बनाना, उनको पोस्ट करना। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। कि आपको जब स्टॉक मार्केटिंग में बच्चे शुरू करना अपनी कंपनीज के, यू विल शेयर द स्टॉक, तो वहां पर भी तो आपको चेक कराना पड़ेगा दैट व्हाट इज योर your profit, what is your loss, what is your asset, and what is your liabilities. I'm home, I'm clear to you. ये सारे अकाउंट्स बच्चे जब हम बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं? असेट, लाइबिलिटीज एंड अ प्रेजेंट सिचुएशन एंड ऑल ऑफ दिस। उसके बेसिस पे ही तो जब बच्चे हम स्टॉक रिलीज करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस को देख के पीपल यूज टू डिसाइड कि वी हैव टू इन्वेस्ट दिस कंपनी और नॉट। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट हो किसके ले रहा है? वो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि उनका जो भी प्रॉफिट्स है वो रिडीम हो जाए। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बस ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया आपकी कंपनी पे, दे हैड इन्वेस्टेड इन योर कंपनी कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राइट? दिस इज नॉट द सिचुएशन। सो वी हैड टू प्रेजेंट द प्रॉपर data in this. Okay, so now we had connected with all of the subjects you had read. Now we'll start with your syllabus. Fine? और किसी को कोई बेसिक इंट्रो या कोई डाउट है डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस? So students, now you can have your registers and pen, and I'll dictate the notes for you all. Okay, so you are having it, or you want to take 1 or 2 minutes to have your pencils and notebook? Because if you're supposed to give बच्चे exams in this subject, so you have some proper class notes, and we have limited hours for this subject. We have only 5 hours for this subject, so in which we have to properly discuss and prepare the notes. So in today's class बच्चे आप अपने ऑफलाइन नोट्स बना लीजिए पेन और कॉपी के साथ। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास I'll prepare ई नोट्स टू यू, एंड आप बस उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स। ओके? यस, मोहित, फरीन, जगजीत, सादिया, चंचल। बच्चे नोटबुक है सभी के पास? नोटबुक, पेन, सो दैट आई कैन डिक्टेट द डेफिनेशन टू यू ऑल? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Thank you. So now you could start with your dictation. So write down the heading data visualization.
So you might write down it. Data visualization is the representation. Data visualization is the representation of the data through use of common graphics through use of common graphics such as charts, comma, plots, comma, infographics such as charts, comma, plots, comma, infographics, and even animations, full stop. These visuals display of information, these visual display of information communicate complex data relationship and data driven insights that is common graphics के बाद बच्चे common graphics comma such as charts comma plots comma infographics. I'm writing here the information spelling, comma, infographics, and even animations, full stop. अब बच्चे लाइन चेंज करके लिखना these visual display of information communicate complex data information and data relationships that is easy to understand. अच्छा display के बाद one thing I can do that I'll just share the definition. And complex data relationship that is easy to understand. एंड बच्चे जिनका बीच में अभी डाउट आ रहा था कि मैम हमारा रह गया डिस्प्ले के बाद, आई शेयर्ड इन द चैट बॉक्स दैट यू कैन राइट डाउन द कंप्लीट डेफिनेशन. ओके, सो बच्चे रीड डाउन दिस डेफिनेशन. ये वही है जो भी हमने कम्युनिकेट करा कि कैसे हम जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसे उस वे में प्रेजेंट करें कि बच्चे ना ही वो केवल कम्युनिकेटिव लगे, बट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, सो वी हैड न्यूमरस कंपटीशन कि हमारा डाटा इस तरीके से प्रेजेंट हो कि वो दूसरे से सुपीरियर लगे, ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव प्लस इनोवेटिव लगे एट द सेम टाइम. फाइन. So we'll read about the further.
स्टूडेंट्स एक बार मुझे आप अपना यूजी कोर्स का टाइटल बता दीजिए, दैट इज बीए प्रोग्राम और वट एवर इट इज, इन द चैट बॉक्स. ये स्टूडेंट जगजीत, साध्या, चंचल, मोहित, करीम. Okay, it is BA Program Economics. बच्चे बुक्स आ गई हैं आपकी सब्जेक्ट की? नो मैम. अभी तक नहीं आई आपकी? और एग्जाम कब से है आपकी? एग्जाम तो आई गेस आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा ना? यस मैम. बट बुक्स तो आ जानी चाहिए थी. लेट मी चेक. अब बच्चे एक बात आप बताओ कि वी हैड टॉक अबाउट कि डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. तो वी वुड स्टार्ट दिस स्टेप वाइज. ठीक है. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा बच्चे डाटा प्रिपरेशन के लिए, वो क्या होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है. अब आप मुझे एक बात बताओ, डाटा बच्चे एक तरीके का तो हो नहीं सकता. वी कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी वुड आइडेंटिफाई दैट इट इज एन क्वालिटेटिव डाटा और इट इज एन quantitative data. Fine. So write down the steps. You may write down the next heading, steps for data presentation. तो बच्चे देखो, मैंने आपकी चैट बॉक्स में मेंशन किया है, क्योंकि आज हम शेयर स्क्रीन नहीं कर पा रहे, तो हम इस तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं. डाटा फंडामेंटल्स एंड प्री प्रोसेसिंग. सबसे पहले बच्चे हम क्या देखेंगे कि डाटा किस टाइप का है. ठीक है. हम उसे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं. तो आप मुझे सबसे पहले इसमें दो टर्म्स बच्चे मेंशन्ड है. फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट डाटा? एनीबॉडी हैज द आइडिया कि मैम दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट डाटा? ओके. बच्चे डिस्क्रीट डाटा कैसे होता है? अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. ठीक है. कि गिव मी द नेम ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो बच्चे इसमें कोई भी नाम आ सकता है, कितने भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दी, है ना, कि आपको बेस्ट बैट्समैन बताना है, या फिर आपको इंडियन क्रिकेटर्स का नाम बताना है, या फिर आपको वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर्स का नाम बताना है. तो ऐसे डाटा जिनकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती. फाइन.
दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड डाटा और वी कैन से अनडिस्क्रीट डाटा, ठीक है, कि आपको कोई ग्राउंड ही नहीं दिया गया। बट इफ वी टॉक अबाउट द डिस्क्रीट डाटा तो बच्चे इसमें ना स्पेसिफिकेशंस होती हैं। फाइन, डिस्क्रीट डाटा, discrete data is concerned with the specifications। बच्चे स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि गिव मी द नेम ऑफ 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि मैम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से करके, ठीक है। तो आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ डाटा आ गया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट डाटा। समझ में आया सभी को? कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट डाटा। और अगर बच्चे मैं आपसे कहूँ कि नॉर्मली इन अ ईयर, ठीक है, कितने डेज होते हैं, तो यू वुड से टू मी मैम 365 जनरली, बट इफ वी टॉक अबाउट द लीप ईयर दैट वुड बी 366 डेज, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट डाटा। तो सबसे पहले आप डाटा आइडेंटिफाई करेंगे दैट दिस इज द डिस्क्रीट डाटा और दिस इज एन कंटिन्यूस डाटा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंटिन्यूस डाटा, उसके अंदर आई विल शो यू एन but I can't show you the notes from my system presently. So बच्चे, if I talk about the continuous data यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज चलती आ रही है that is never ending। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इंडिया का जीडीपी जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है, ठीक है, तब से अब तक कितना एक्सीलरेट हो चुका है, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैम 1951 में ये था, 1952 में ये था, 53 में ये था, 54 में ये था, 56 में ये था, ठीक है। बच्चे थ्री डॉट ऑप्शन में भी ना यहाँ पर शेयरिंग का चलो आपका बैकग्राउंड तो इसमें सेट हो गया है। आई एम ट्राइंग कि अगर शेयर हो जाए तो दैट विल बी रियली ग्रेट।
अभी बच्चे शेयर नहीं हो पा रहा है, जब क्लास के बीच में 10 मिनट्स का गैप होगा, ठीक है, उसमें डेफिनेटली शेयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि कहाँ से टैब वगैरह हम शेयर एंड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे बच्चे? कंटिन्यूस डाटा के ऊपर, ठीक है। तो कंटिन्यूस डाटा अगर हम एक तरीके से बात करें, तो कंटिन्यूस डाटा की बच्चे जब हम बात करते हैं, तो अभी आपको पता है ओलंपिक्स में कितने मेडल आए थे रिसेंटली इंडिया के? अभी जो बच्चे रिसेंट ओलंपिक्स हुआ था, जिसमें जो नाम था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, जो गर्ल थी हरियाणा से, उन्होंने 2 मेडल लाए थे। तो टोटल बच्चे हमारे 5 मेडल्स आए थे, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक्स दैट वी आर गोइंग टू अर्न, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन कॉन्टिन्यूस डाटा। व्हाई? बिकॉज बच्चे अभी हमें पता है कि 2025 में वी आर एबल टू गेट द 5 मेडल्स, ठीक है। अब अगर 4 साल बाद बच्चे जो ओलंपिक्स होगा, उसमें हमारे पास कोई एब्रीविएशन तो है नहीं कि मैम सर्टेनली इतने पार्टिसिपेंट्स होंगे एंड इतने मेडल्स हमारे पास वी वुड गेट, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। Yes, Chanchal, do you have any doubt? You had raised your hand. Chanchal, you had, okay. So I want to ask कि अगर बच्चे, if I ask you about the specifications, कि Olympics में 4 साल बाद कितने मेडल्स आएंगे, will you be able to guess? Yes or no? No, ma'am. नो। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि अभी इलेक्शंस हुए हैं बिहार में, ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट कि जैसे 2026 के बाद हमारी लोकसभा की सीट इंक्रीज होंगी, कि कितनी इंक्रीज होंगी, किस तरीके से इंक्रीज होंगी, तो बच्चे ये समझो कि जहां पर आपके पास स्पेसिफिकेशंस है, जहां पर आपके पास ग्राउंड्स हैं टू सिलेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट डाटा, जिसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन सेट हो गया, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दिस मीटिंग, so this is about 11 few minutes ago, fine, so that will be called as discrete data। और continuous क्या होगा कि कितने बच्चे मीटिंग में हैं, तो वो क्या होता रहेगा, that will be called as shuffle data, कि वो कितना भी इतना है फिर बाद में इतना होगा, ठीक है। वापस आते हैं अपनी नोट्स के ऊपर। Very good, you had shared the image also, very good, Mohit। So this is why I also like the online teaching when students are interactive, fine। And the second step is data wrangling और cleaning। इसका मतलब बच्चे क्या है कि आपको, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन कंपनी, ठीक है, उसके अंदर आपसे कहा गया कि यू हैड टू प्रिपेयर सर्टेन चार्ट और सर्टेन टेबल, ठीक है, आप प्रोडक्ट के लिए बनाओ, बट आपने देखा कि डाटा के अंदर बच्चे कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उस मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंडली, जब आप उस मिसिंग वैल्यू को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद व्हाट यू विल डू कि आप उसे अरेंज करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। कि मिसिंग वैल्यू के बाद आप उस डाटा को, मिसिंग वैल्यू इंसर्ट करने के बाद यू विल ट्रांसफॉर्म दैट डाटा, और उस डाटा को बच्चे ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम उसे क्या करेंगे कि उसके अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स डालेंगे, ठीक है। नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स क्या होता है बच्चे? नॉमिनल होता है जिसमें आप ना कंप्लीट नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे जीडीपी की, ठीक है, कि हमारी कंट्री का जीडीपी इज ऑलमोस्ट अबाउट 5 ट्रिलियन, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आप मुझे बताओ कौन सी ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा जीडीपी है इंडिया के अंदर, which is contributing mostly to the GDP of our country? बताओ। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी क्लास में चलेगा कि, हाँ, कोई भी बच्चे, यू कैन टेक द नेम ऑफ एनी स्टेट। आपको पता है नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ठीक है। आई विल गिव यू द हिंट कि वो आपकी वेस्टर्न साइड से है थोड़ा।
अच्छा, आई गिव यू 4 ऑप्शंस, ठीक है। सबसे पहला गुजरात, सेकंड वुड बी उत्तर प्रदेश, थर्ड वुड बी तमिलनाडु एंड फोर्थ वुड बी महाराष्ट्र। बताओ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है हमारी कंट्री की जीडीपी को? अब तो बता दो बच्चे, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहला गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी कंट्री की जीडीपी के लिए? बताओ बच्चे, चारों ऑप्शंस में से। अच्छा, सबसे पहले गुजरात किसको लग रहा है वो यस टाइप करे अभी चैट बॉक्स में। बताओ। सादिया, जगजीत, चंचल, मोहित, फरीन। Ma'am, want you able to see our chat? We are already typing. You are already typing. Okay. Yes, ma'am. Already. ओके। सो सादिया का आंसर है महाराष्ट्र, चंचल का आंसर है गुजरात। महाराष्ट्र के ऊपर चल रहा है बच्चे। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र, ठीक है। वो हमारी इंडिया की जीडीपी का मतलब आई जो रफली फिगर है दैट इज अबाउट 13% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सेकंड प्लेस पे कौन होगा? गुजरात। बच्चे सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद मतलब आप क्लोजली ले सकते हैं गुजरात और तमिलनाडु को। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मैंने 4 रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताया था, फाइन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे दैट कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारी जो सर्दर्न स्टेट्स हैं फाइन, दे आर इक्विप्ड विद बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, फाइन, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनके बच्चे मॉडल्स ही कुछ इस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि अगर आप इफ यू आर if I used to talk about the biggest exam of our country, that is the UPSC, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You had to read about Tamil Nadu textbook, which are considered really fruitful, ठीक है। तो that could keep on changing। जो हमारा कंटिन्यूस डाटा होता है कि कभी अभी टॉपर महाराष्ट्र है तो तमिलनाडु भी टॉपर आ सकता है अगर वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर डाटा प्रेजेंटेशन। तो मैंने बताया आपको, आपने डाटा जब क्लासिफाई करा उसके बाद जो हिडन है उसके अंदर आपने उसको आइडेंटिफाई करा, उसे इंसर्ट करके आपने बच्चे क्या करा कि आपने उसमें नॉमिनल, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी रैंक बताई कि फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र है, सेकंड रैंक पर तमिलनाडु है, थर्ड रैंक पर आपका गुजरात था, फोर्थ रैंक पर आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एंड ऑर्डिनल बच्चे क्या होता है? ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं कि हम नंबर्स की बात नहीं करते, ठीक है, हम थोड़ा क्वालिटेटिव की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? क्योंकि बच्चे डाटा, मुझे आप एक बात बताओ, हम जनरली बात करते हैं कि डाटा इज एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है, कि हम टेबल की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम फिगर्स की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। जो हमारा डाटा बच्चे होता है वो हम क्वालिटेटिव को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कि अभी हम क्या करेंगे, विल टेक एन ब्रेक ऑफ अबाउट 5 to 7 minutes फ्रॉम 10:30, ठीक है। देन आई विल शेयर माई नोट पैड टू यू कि हम कैसे अपना जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि व्हाट डू मीन बाय डाटा विजुअलाइजेशन, कैसे आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, है ना। बच्चे जब अभी मैंने ये शेयर किया, ये आपको विजिबल है यहाँ पर गूगल क्रोम? यस एवरीबॉडी?
अच्छा नहीं है विजिबल इश्यूज, ठीक है। अब आप बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जो हमने डाटा की बात करी, हमने जापान की पैकेजिंग की बात करी, हमने ज़ेरोडा की फाउंडर की बात करी, और हमने बात करी कि किस तरीके से जो डाटा होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केटिंग के अंदर भी, कि आप कैसे उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो डाटा की अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं कि आपको अच्छा डाटा दिखाने के लिए तो क्या उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए बच्चे? सबसे पहला तो बच्चे डाटा शुड बी क्लियर, है ना। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डाटा विजुअलाइजेशन। सबको चैट बॉक्स में दिख रहे हैं बच्चे नोट्स? तुमने क्या यहाँ पर मेंशन करा है बच्चे कि जो डाटा होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। कि सबसे सिंपलेस्ट अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर कोई न्यू कमर है, इफ वी टॉक अबाउट यू ऑल, ठीक है, लाइक प्रेजेंटली यू आर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जब आप बच्चे मास्टर्स में जाओगे तो आपको और डाटा प्रोफिशिएंट बनाया जाएगा कि आप इस तरीके से भी डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप पीएचडी में जाओगे तब तो आप बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम लेवल पर चले जाओगे कि ऐसे रिसर्च प्रेजेंट होता है, ऐसे करके पेपर ड्राफ्ट होते हैं। बट इनिशियली जब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हो तो आपके लिए सामने क्या होना चाहिए कि डाटा शुड बी क्लियर, ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि डाटा शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। अच्छा, जब आपने बच्चे अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक टर्म होगा विंडो ड्रेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? एनीबडी? कि मैम दिस इज द मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग और दिस एंड दिस। यस, मोहित, फरीन, सादिया, जगदीश, चंचल, बच्चे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? ओके, डोंट रिमेम्बर। बच्चे विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कि आपकी अभी नेट वर्थ है, ठीक है, विल टेक अबाउट कि 100 to 200 करोड़, ठीक है। या फिर एक एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें, लेट सपोज योर नेट वर्थ इज 100 करोड़, ठीक है। अब आपने क्या करा, अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए अपनी नेटवर्थ को डबल कर दिया। आपने अपने एसेट दिखा दिए बढ़ाकर, ठीक है, और अपनी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, कम कर दिया। आपने जो आपका लेट सपोज मान लो पिछले 5 साल में 2 साल लॉस हुआ हो, ठीक है, 3 साल आपका प्रॉफिट हुआ हो, आपने दिखा दिया जी कि 5 साल हमें प्रॉफिट हुआ है, हमारी एसेट भी इतनी ज्यादा है, हमने कोई लोन ही नहीं ले रखा बैंक से, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटीज बहुत कम है। और आपने इस तरीके से करके अपने जो नेटवर्थ है उसको मल्टीप्लाई करके डाटा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब जो बच्चे, हाँ वेरी गुड, लाइक एन लेंस कार्ट आईपीयू, ठीक है। अब जो बच्चे, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो विंडो ड्रेसिंग हो गया कि आपने एक्चुअल डाटा तो प्रेजेंट करा नहीं, ठीक है, आपने क्या करा कि आपने उसे मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड टर्म फॉर दिस इज विंडो ड्रेसिंग, जो हम अकाउंटेंसी में पढ़ते थे। सो डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर भी यू कैन यूज दिस टर्म, ओके। अच्छा, फोर्थ थिंग बच्चे, डाटा जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमारे इंडिया का सेंसस बच्चे होता है, वो उसका क्या प्रोसेस है कि वो हर 10 साल में होना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि लास्ट हुआ था वो 1900 समथिंग में, उसके बाद 2011 में हमारे पास डाटा आया, फिर उसके बाद कब आना था बच्चे, 2021 में। क्या हमारे पास कोई सेंसस आया 2021 में? बताओ बच्चे। वाई? बिकॉज बच्चे 2020 एंड 2021 में आ गया कोविड, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन इतनी डिस्ट्रैक्ट थी कि हम सेंसस कंडक्ट नहीं करा पाए, ठीक है। फर्दर हमें क्या करना था, इस बार अपनी सेंसस में बहुत सारी चीजें ऐड करनी थी। क्या किसी को इन्फॉर्मेशन है इस सेंसस में क्या क्या नया आने वाला है? बच्चे इस सेंसस में ना पहली बार कास्ट सर्वे होगा, ठीक है। और जो हमारी पीवीटीजीस होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनका बेटर एक सर्वे बनेगा कि कितने पीवीटीजीस है हमारी कंट्री के अंदर जिनके लिए स्कीम लाई जाए उनके डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, कास्ट सर्वे हमारे होंगे जिसकी वजह से हमारा जो सेंसस हो वो बेटर अपग्रेडेड हो। अब उसके अंदर बच्चे सारी करेक्टरिस्टिक होंगे, आप देखो एक्यूरेसी भी होगी, ठीक है, क्लैरिटी भी होगी, बट उसके अंदर बच्चे क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। हमें 10 साल में अपना सेंसस मिलना था, बट वी कुड नॉट गेट टू दिस सेंसस बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको क्या मेंशन करा है बच्चे, एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक अपील का मतलब क्या है कि वो जो आपका डाटा हो वो अपीलिंग हो। जैसे मैंने आपको जापान की पैकेजिंग का एग्जांपल दिया, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, कि अगर उन्होंने इतना बड़ा प्रोडक्ट अपनी पैकेजिंग में दिखाया तो जब आप उसे ओपन करोगे तो लेट्स सपोज इट्स एन पॉपकॉर्न पैकेट, तो वो इतना ही कंपैरेटिवली साइज होगा, राइट। लास्ट इज इंटरएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि अब आप बच्चे देखो, ठीक है, जब आप यूट्यूब में देखते हो कई बार सेमिनार्स आते हैं। कैसे सेमिनार्स आते हैं कि आप कैसे एआई को लेके अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या नए नए सॉफ्टवेयर है लाइक एसपीएसएस सिस्टम, जो आई मेंशन हियर। एसपीएसएस सिस्टम क्या होता है, पता है किसी को? वो हम अपनी क्लास में भी पढ़ेंगे, विच इज एन वेरी गुड सिस्टम, एसपीएसएस सिस्टम। उसके अंदर बच्चे क्या होता है कि लेट सपोज अभी गवर्नमेंट स्कीम आई, ठीक है, तो हम ले लेते हैं वेरी फेमस स्कीम का एग्जांपल, प्रधानमंत्री आवास योजना। सभी को पता है इसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, सो बच्चों उसका टारगेट क्या था कि हमारे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब बिलो इनकम के लोग जो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रहा है, सब्सिडाइज हाउस होल्ड्स दे रहा है, ठीक है, कि आप इतनी रेट पे पर्टिकुलरली यू विल बी गिवन ए होम, ठीक है। अब स्कीम तो बच्चे लॉन्च हो जाती है, उसके बाद हमें पता कैसे लगता है कि इतने करीब इतने से यार लोगों तक ये स्कीम पहुंची है, ठीक है, क्या इतने लोगों ने इसका बेनिफिट ले पाए, ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है बच्चे अभी जब हमारा गवर्नमेंट क्या करता है कि जो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, पूरी टीम बनाई जाती है, उनको हायर करते हैं। उसके बाद ये जो आपका सिस्टम है एसपीएसएस सिस्टम, इसकी हेल्प से पूरा प्रॉपर एसिमिलेशन तैयार होता है, ठीक है, दैट विल बी यूजिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, कि कैसे एसपीएसएस सिस्टम को लेके आप बहुत इंटरेक्टिव वे में अपने पूरे डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर बच्चे गवर्नमेंट अभी इस अपडेटेड सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है तो वी शुड आल्सो हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ओके। ठीक है, अभी एक हो गया बच्चे इंटरेक्टिविटी के, अपने स्लाइडर्स दिखा दिए, फिल्टर्स दिखा दिए उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जब मैंने आपसे बात करी थी कि बच्चे जब आप डाटा यूज करने लगे, ठीक है, तो बेसिक से हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, सो वी रेड अबाउट द बार ग्राफ। आई विल शेयर द नोट्स हियर। तो बच्चे देखो इसमें प्रेजेंटेड है कि डाटा को हम किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये 5 प्लॉटर्स रीड करो, ठीक है, और आपसे मैं आई इंटरेक्ट विद यू कि आपको इसमें से क्या समझ में आया, या आपको जो नहीं समझ में आया यू कैन आस्क फ्रॉम मी, राइट।
वेरी गुड. वी ऑल यूज इट इन एक्सेल और पावर पॉइंट. ठीक है. बट जब बच्चे मैन्युअली भी बनाने की बात करते हैं, ठीक है, 10 बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शेयर द इमेजेस विद यू ऑल. अभी बच्चे मैंने आपके चैट बॉक्स में एक इमेज, इट इज ब्लर्ड. ठीक है. अच्छा, जब बच्चे आपको अब चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, एक मैंने आपको बार ग्राफ देखा है, बट इसके ना बस फिगर प्रेजेंटेशन देखो कि हमने इसमें क्या करा है. सेकंड वाला देखो बच्चे कि हमने इसमें डाटा बनाया है कि सबसे ज्यादा कौन सा फूड परचेज किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है. तो आपको लग रहा होगा कि मैम दैट कैन ऑब्वियसली बी मैंगोज. ठीक है. बट इट्स नॉट नेसेसरी. हम सबसे ज्यादा क्या परचेज करें बच्चे इस समय? ऑरेंजेस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एप्पल. ठीक है, विच इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स. देन मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज, एंड उसके बाद क्या मेंशन्ड है यहाँ पर? वाटरमेलन. ठीक है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने क्या करा है कि पर्टिकुलर यूनिट्स को ऑन द ग्राफ प्लॉट करा है ना, बार ग्राफ. ठीक है. हिस्टोग्राम इज द सेम, बट देयर इज एन डिफरेंस कि जैसे बच्चे यहाँ पर ग्राफ्स में डिफरेंस है, ऐसा हिस्टोग्राम में नहीं होता. आई विल शो यू. ये सेकंड इमेज विजिबल है बच्चे सभी को? The difference between the bar graph and histogram that I was talking about to you in initially. Yes, this one. बच्चे आप जो आपका रिक्वेस्ट है ना कि इमेज वगैरह शेयर करने का, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर ई नोट्स होगा आपके पास. ठीक है. जिसमें हम ना केवल ये इमेजेस देखेंगे, वी विल आल्सो मेक इट. ठीक है. एंड जो भी हमारी अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, दैट इज एसपीएसएस सिस्टम एंड ऑल, क्योंकि ई नोट्स आज भी हमारे पास हैं, बट वी आर नॉट एबल टू शेयर इट ड्यू टू सम एरर दैट आई हैड कॉन्टेक्टेड. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इन द चैट बॉक्स. ओके. इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू शो अ डिफरेंट टैब, जिसके अंदर हम सारे ये आपको शेयर कर देंगे ई नोट्स वगैरह प्रॉपरली, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम्स. ओके. बच्चे आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है क्या? तो वो किसी प्रोफेसर ने बनाए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, या आप स्टूडेंट्स का है बच्चे? अच्छा, स्टूडेंट्स का है. एवरीवन हैव डिफरेंट. तो बच्चे एक काम कर सकते हैं आप, आई एम शेयरिंग माय कांटेक्ट नंबर. ठीक है. या फिर एक काम नहीं, आई एम शेयरिंग माय जीमेल आईडी. मैम आई थिंक वो स्केड्यूल में है, जीमेल आईडी और फोन नंबर. माय जीमेल आईडी इज विजिबल टू यू ऑल. मैम रूबी नागर 1999 समथिंग. हाँ हाँ हाँ. तो या आप इसके ऊपर बच्चे अपना जो प्रॉपर आपका क्या कहते हैं रोल नंबर है, ठीक है, प्लस योर नेम, यू कैन मेल मी. ठीक है. विद योर कॉन्टेक्ट नंबर आई विल एड यू ऑल इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके. I'll ओके make मैम. it separate WhatsApp group for your subject, and either I will share my contact number or I will share the WhatsApp group link on your registered mail. So that will be more formal way of connecting with you. Okay. मैम वी हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर टू इन द स्केड्यूल. That is आई थिंक. also visible. Can यस you? It is 838395558. मैम. या Okay.
So that's better. You can also text me in my WhatsApp group and I'll add you all in that group. Okay. Okay, ma'am. And yes, this is best. Then we could also share the today's notes in your WhatsApp group. That will be really good, I guess. Okay. So coming back to our topic, बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि बार ग्राफ में क्या होता है कि गैप्स होते हैं हमारे पर्टिकुलरली टेबल्स के बीच में, बट हिस्टोग्राम इज मोर ऑफ अ रेगुलर. ठीक है. उसके साथ अभी मैंने आपको क्या बताया, पाई चार्ट का भी एक बार आई विल शो टू यू. बच्चे पाई चार्ट विजिबल है सभी को, दैट आई शेयर्ड रिसेंटली. यस मैम. ठीक है. अब बच्चों ये तो आपको ध्यान होगा, पाई चार्ट मतलब एक सर्कुलर प्रेजेंटेशन, बट कितने बच्चों को अभी भी ध्यान है ये कैसे बनाते हैं? चलो कोई नहीं, इसमें कैसे डिग्रीज हम लेते हैं, कैसे प्लॉट हम करते हैं, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस हम. अच्छा याद है, वेरी गुड. ठीक है. इसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट क्या है, बिकॉज पाई चार्ट वी नो इज इन सर्कुलर प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज योर हिस्टोग्राम दैट वी हैड डिस्कस. एंड स्कैटर प्लॉट कुछ नहीं होता बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं जनरली, जैसे अपने बार ग्राफ को आप देखो, ठीक है, तो इनके जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं उसे ज्वाइन करके एक रफ लाइन बना देते हैं. शो यू योर स्कैटर डायग्राम. ठीक है. ये दिख रहा है सभी को स्कैटर डायग्राम? ठीक है. तो बच्चे अब इस स्कैटर डायग्राम के अंदर देखो कि ये जो सारी पॉइंट्स हैं ये अपवर्ड जा रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. और अगर बच्चे यही आपका डाउनवर्ड जाने लगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर नेगेटिव कोरिलेशन. फाइन. एंड आपका ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है मैम, दैट इट कैन आल्सो हैपन कि ना तो ये अपवर्ड हो ना ही डाउनवर्ड हो, कि एक हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना मिले, सो दैट विल बी कॉल्ड एज नो कोरिलेशन. आई विल आल्सो शो दैट टू यू. So is this diagram available to all? ओके. सो बच्चे यहाँ पर देखो कि जब हम अपने डाटा को प्लॉट कर रहे हैं, इट इज शोइंग एन अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड की बच्चे जब हम बात कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट. ठीक है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव. फाइन. एंड इफ इट विल बी डाउनवर्ड फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है. और बेसिकली 3 टाइप आपके होते हैं, और अगर हमें डॉट्स ज्वाइन करने के बाद बच्चे ना ही पॉजिटिव मिल रहा है ना ही कोई नेगेटिव मिल रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज नो रिलेशनशिप. फाइन. एम आई क्लियर टू ऑल? यस मैम. Okay. So this is what we talk about, what is data visualization, what is the step, and data की characteristics क्या बच्चे होने चाहिए. Basically हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. We would revise again कि मैंने आपको बताया था बच्चे principles of data presentation. So what do you mean by that? कि आपके डाटा को जो हम प्रेजेंट करते हैं उसके क्या characteristics होने चाहिए. बताओ. Ma'am, what is the difference between line graph and scatter plot? स्कैटर प्लॉट में बच्चा आप क्या होता है कि आप ना पॉइंट्स मार्क करते हैं. ठीक है. और वो पॉइंट्स मार्क करने के बाद वी यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप. बट लाइन ग्राफ में क्या होता है कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आप बना देते हैं, यू डोंट यूज द पॉइंट्स. ओके. Okay, ma'am. Okay. So I was asking you about the characteristics of the data. So what do you mean by the characteristics of the data कि जब हम डाटा को प्रेजेंट करें तो आइडियल डाटा प्रेजेंटेबल कैसे लगता है. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. Data should be clear, वेरी accurate, गुड. वेरी गुड. एंड and relevance. very good, that could be
वी कुड से अभी हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें मुझे ध्यान आया कि हम कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जैसे कि इट शुड बी इनोवेटिव, इट शुड डिलीवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो विजिबल हो। ठीक है, अगर आप बच्चे एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, यू वेंट टू शार्क टैंक, और अगर आपको बच्चों से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो व्हाट वुड यू शो? यू वुड शो कि हमारा इक्विटी कितना है, हमारा डेब्ट कितना है, हमारी सेल्स कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, उसके बेसिस पे यू वुड अट्रैक्ट द इन्वेस्टर। ओके ओके। okay, so we are proceeding towards our next topic. I'll just share the notes. अब जैसे कि बच्चे हमने डाटा की बात करी, ठीक है, सो वी वर टॉकिंग बेसिकली अबाउट द टू टाइप्स ऑफ डाटा। फाइन, सबसे पहला बच्चे क्वांटिटेटिव डाटा, द सेकंड वन इज योर क्वालिटेटिव डाटा, थर्ड वन इज योर टाइम सीरीज डाटा, एंड फोर्थ वन इज योर स्पेशल डाटा। फाइन, जब हम बात करते हैं बच्चे क्वांटिटेटिव डाटा, दैट इज वेरी इजी। क्या होता है वो? क्वांटिटेटिव डाटा बच्चे ऐसा डाटा, फाइन, जिसे आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फाइन, जैसे कि क्वांटिटेटिव डाटा का अगर हम एग्जांपल लें तो द जीडीपी परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री फ्रॉम लास्ट 5 years, फाइन, दैट विल बी कॉल्ड एज एन क्वांटिटेटिव डाटा। एंड इफ आई यूज्ड टू टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव डाटा, तो क्वालिटेटिव डाटा में हम बात कर सकते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। अच्छा, आर यू ऑल अवेयर अबाउट द ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स? जैसे जीडीपी है, आई होप कि सबको पता होगा। यू कैन ऑल्सो आस्क अगर मैम कोई डाउट है। ओके, सो बच्चे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? भूटान यूज टू मेजर इट, कि अपना प्रोग्रेस दिखाने के लिए दे यूज टू यूज ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इन स्पाइट ऑफ जीडीपी। तो उसके अंदर बच्चे वो क्या दिखाते हैं कि हमारी जेंडर डिस्पैरिटी किस तरीके से है, फाइन, कि हमारे यहाँ फीमेल्स को कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, प्लस हम कितने सस्टेनेबल वे से डेवलपमेंट कर रहे हैं। थर्ड थिंग, वो इन्वायरमेंट प्लस गुड गवर्नेंस प्लस अपना जेंडर फोकस भी अप्रोच लेके चलते हैं विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपको मिक्सचर दिख रहा है। आई जस्ट टेक्स्ट हियर गुड गवर्नेंस, जेंडर पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल अप्रोच, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब हम बच्चे चार चीज लेकर चल रहे हैं ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आप ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ बच्चे, इन्वायरमेंट इज एन पार्ट ऑफ सस्टेनेबल अप्रोच। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो दैट इज एन क्वांटिटेटिव असेसमेंट। बट जो हम तीनों की बात करते हैं बच्चे, अपना इन्वायरमेंट जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, प्लस जेंडर पार्टिसिपेशन, एंड लास्ट वन इज योर गुड गवर्नेंस। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ योर क्वालिटेटिव डाटा। फाइन, कि जिन्हें हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेंशन नहीं कर सकते, बट थ्रू प्रॉपर सर्वे, ठीक है, from looking at the data at the quality, we can assess that this is our qualitative data. And next we talk about the time series data. time series data मतलब बच्चे क्या होता है कि समय के साथ क्या एडिशंस होते हैं। फाइन, जब हमारी इंडिया को बच्चे इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के अंदर, was इंडिया ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री? बताओ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 के अंदर, was इंडिया इन सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी था तब? नो। ठीक है, उसके बाद बच्चे जब हमारा क्या आया, हाँ, इट शोज स्टेगनेंट ग्रोथ, वेरी गुड। जब बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद ना केवल फूड सिक्योरिटी हुआ, वी बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। फाइन, सो इट इज एन टाइम सीरीज डाटा एग्जांपल, कि किस तरीके से टाइम के साथ हमारे डाटा में चेंजेस आते हैं। फाइन, आई एम ऑल्सो कोटिंग हियर इन द नोट्स। फोर्थ वन इज योर बच्चे स्पेशल डाटा। फाइन, स्पेशल डाटा का मतलब क्या होता है? स्पेशल डाटा मतलब होता है जब आप ज्योग्राफिकल वे, फाइन,
मैप्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम बात अभी हमने करी थी क्लास के स्टार्टिंग में AQI। फाइन, इफ आई यूज टू टॉक अबाउट द AQI ऑल ओवर द इंडिया, कि इस आप ये देखेंगे कि मैम ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत अच्छा पोजीशन है, वहाँ का AQI बहुत बेटर है। साउथ की हम बात करें तो कंपैरेटिवली स्टेबल है। और इफ वी टॉक अबाउट आर नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिकली द NCR रीजन, वहाँ पर अभी इतना अच्छा AQI नहीं है। ठीक है, सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल डाटा। सभी को समझ में आया बच्चे कि किस फॉर्म में हमारे डाटाज होते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टाइम सीरीज डाटा एंड योर स्पेशल डाटा। अच्छा, जब बच्चे मैंने आपको स्पेशल डाटा का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था मैप्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बताओ। Who had first initiated? Very good, Greece। ठीक है, सो दे हैड दे आर नोन एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी, कि किस तरीके से उन्होंने मैप्स को लेके पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करा था, दैट दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन यूटिलाइज। अच्छा बच्चे, जब हमने बात करी थी हिस्टोग्राम की, बार ग्राफ की, पाई चार्ट्स की, सो यू हैड टेल मी दैट कि मैम हम इसे एक्सेल में यूज करते हैं या गूगल शीट में यूज करते हैं। तो बच्चे, और कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डाटा विजुअलाइजेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? सबसे पहला तो वही जो आप सभी को पता है, एक्सेल, गूगल शीट। सेकंड वन इज योर बच्चे टेबल व्यू। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है कि आपका पर्टिकुलरली आप टेबल्स बना सकते हैं विद वेराइटी ऑफ डिजाइंस, विद वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड वन इज योर पावर BI। फोर्थ वन इज योर पाइथन लाइब्रेरी, जो अभी बहुत ज्यादा रिकरेंट यूज में है, विद योर SPSS system which is utilized by the government for data projection, for your data projection and the tracking the progress of government schemes, or tracking the progress of your government schemes and programs. Fine. And last one is your GIS tools, which is used for spatial mapping. GIS मतलब तो बच्चे GIS मतलब जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कैसे आप अपनी सैटेलाइट को यूज करके अपना डाटा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट है विच इज योर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फाइन, IMD। आर यू ऑल अवेयर अबाउट इट, IMD? हाँ, इसका क्या वर्क होता है बच्चे? इफ आई टॉक अबाउट आर इंडिया, ये बच्चा हमें बताता है कि मॉनसून कैसे आने वाला है। ठीक है, या पर्टिकुलरली कितने किस मंथ में कितनी बारिश होगी। ठीक है, या क्या हीट वेव्स रहेंगे। तो पर्टिकुलरली हमारे वेदर को लेके जो प्रोजेक्शन करता है, ठीक है, हमारी इंडिया के अंदर, दैट इज योर IMD डिपार्टमेंट। फाइन, तो बच्चों ये कैसे पता लगा लेता है कि तब मॉनसून आएगा, ठीक है, या फिर तब हमारा सीजन ऐसा रहेगा? थ्रू द यूज ऑफ GIS। फाइन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि हम अपने सैटेलाइट के यूज से ये देखते हैं कि ओशन की मूवमेंट कैसी है अभी। ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली विंड अभी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग मॉनसून की प्रोजेक्शन होता है। राइट, so you can also write down in your notes in the GIS tools about the Indian Meteorological Department, और उसमें आप एग्जाम्पल बच्चे लिख सकते हैं, to assess the arrival of the monsoon in the country। Fine, am I clear to all? बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Yes students, okay, fine। अब बच्चे, जब हमने डाटा वगैरह की बात कर लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करा, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए,
तो अब हमें अगर एक क्लियर डाटा बनाना है, सो वी शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस स्टेप्स, ठीक है, कि क्या स्टेप्स होते हैं हमारे क्लियर डाटा प्रोजेक्शन के। फाइन। तो यहाँ पे गिवन है बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस पर्पस से अपना डाटा बनाना है। फाइन। सेकंड इज कि किस तरीके का डाटा बनाना है। जैसे कि हम बात करें बच्चों, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब क्या करती हैं कि दे यूज टू प्रोजेक्ट जीडीपी एज देयर इंडिकेटर। इफ वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट, इफ वी टॉक अबाउट द चाइना, इंडिया, जापान एंड जर्मनी, ऑल फाइन। बट भूटान ने क्यों क्या चूज करा कि हमें अपना जो प्रोग्रेस है वो दिखाना है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। फाइन। तो हमें अपना पर्पस के साथ अपना डाटा प्रेजेंट करना है। उसके बाद बच्चे हमें विजुअलाइजेशन की सबसे अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करनी है। फाइन। एंड वी शुड क्लियरली ऑर्गेनाइज द डाटा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बच्चे आप सिर्फ डाटा प्रेजेंट करके नहीं लीव कर सकते, है ना, कि मीटिंग हुई, आपने बस दिखा दिया मैम दिस इज द डाटा, दिस इज आवर प्रोजेक्शंस, एंड में आपको बच्चे क्या करना है, यू हैव आल्सो नीड टू प्रेजेंट द रिजल्ट्स। ठीक है, कि मैम कंपैरेटिवली ये हमारे रिजल्ट्स आए, दीज आर आवर अचीवमेंट्स। ठीक है। उसके बाद जनरली क्या होता है बच्चे, लास्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप इज योर फीडबैक, कि हम किस तरीके से और अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम किस तरीके से और अपने आप को बेटर इनहांस कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने बात करी बच्चे गुड डाटा विजुअलाइजेशन की, तो आई ऑल्सो इन्फॉर्म यू कि आपको पता है बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर। आर यू अवेयर अबाउट इट कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ हमारे समिट्स होते हैं बच्चे, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कंट्रीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया G20। सो दैट वाज एन ऑफलाइन मीटिंग। बट बच्चे कुछ मीटिंग ऐसी होती हैं, जब मैं इफ आई टॉक अबाउट इन द कोविड एरा, ठीक है, तो बच्चे मीटिंग्स वेरी गुड ब्रिक्स, वेरी गुड। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द कोविड एरा, तो वहां पर क्या हो रहा था बच्चे, इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, उन सबका बच्चे क्या होता था, ऑनलाइन मीटिंग। तो वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंस देखी गई डाटा विजुअलाइजेशन की, कि हमको किस तरीके से अपना डाटा प्रेजेंट करना है, ताकि जितनी कंट्रीज अभी मीटिंग में हैं वो सब उसे गैदर कर पाए, ठीक है, उन सब के रिजल्ट्स को एसिमुलेट कर पाए, और उसके बाद वी कैन टेक द रिव्यूज। अभी जैसे आपने बच्चे एग्जांपल दिया ब्रिक्स का, ठीक है, तो आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैज अटेंडेड द ब्रिक्स मीटिंग विया ऑनलाइन मोड। ठीक है। तो अगर बच्चों ऑनलाइन मोड में सिर्फ ऐसा किया जाए कि ही हैड जस्ट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, एंड म्यूचुअल टॉक्स चल रहा है और एंड, तो इज दिस एन फ्रूटफुल मीटिंग? नहीं। बट वहां पर अगर एक डाटा प्रेजेंट हो रहा है, वो बेटर कम्युनिकेट कर पा रहा है, तभी तो वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे भाई। सो यहाँ पर बच्चे, जब मैंने आपको बताया कि दीज आर द टेक्निक्स, दीज आर द स्टेप्स, इनके साथ मैं आपको एक बच्चे बिल्कुल की नोट बताती हूँ टू अचीव बेस्ट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, कि बच्चे जनरली हम क्या करते हैं, व्हेन वी वेंट टू आवर मास्टर्स और पीएचडी, तो वहां पर बच्चों हम कभी एग्जांपल्स नहीं देते। कभी ना देने से मतलब क्या है कि वहां पर ना हम केस स्टडीज लिखते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर प्लेस पे ये हुआ, उसके रिजल्टेंट आए। तो वैसे ही जब आप, इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम योर डाटा विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पर आप बच्चे एग्जाम्पल की जगह ना केस स्टडी मेंशन करना। जैसे आपने भी इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया मैम ब्रिक्स, ठीक है, आई टॉक्ड अबाउट द एससीओ मीटिंग। तो जब आपने लिख दिया स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ गुड डाटा, उसके बाद ना आप लास्ट में लिखना दैट दिस इज द केस स्टडी। केस स्टडी में आप कोविड की केस स्टडी भी दे सकते हो, in the COVID meeting, COVID era, online meetings were organized by the international participants, और या फिर अभी जो रिसेंटली ब्रिक्स का सबमिट हुआ, ठीक है, आप वो भी मेंशन कर सकते हो दैट द मीटिंग इज पार्टिसिपेटेड ऑनलाइन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो अगर आपको अपने आंसर्स को इनहेंस करना है, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी बच्चे लानी है, और कभी कभार ये भी देखा जाता है कि लेट सपोज क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में, आपको एक या दो पैराग्राफ आता है, बट अगर आपने बच्चों उसके अंदर एक या दो केस स्टडी ऐड कर दी ना, तो सबसे पहले तो प्रोफेसर वुड आइडेंटिफाई कि आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, यू आर एन इंटरेक्टिव स्टूडेंट। सेकंड थिंग, उससे आपका जो डाटा होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाटा विजुअलाइजेशन, वो बेटर तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बेटर तरीके से प्रेजेंट होगा, तो जब आप केस स्टडी लिखते हो ना, और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और आपके आइडियाज आते हैं कि और क्या हम इसमें केस स्टडीज लिख सकते हैं। ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल?
तो अब जब आप अपने एग्जाम दोगे तो एग्जाम्पल्स की जगह ना बच्चे केस स्टडीज कोट करना, ठीक है, कि पर्टिकुलर प्लेस पर ये हुआ, दीज वर द रिजल्ट्स। तो आप अपने आप इनहेंसमेंट देख लोगे अपने आंसर्स में। तो इस तरीके के कुछ बच्चे की आइडियाज होते हैं दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल इन द इन आवर लास्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि लास्ट टिप्स ही होते हैं ये कि किस तरीके से आप अपने जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन हो उसे बेस्ट प्रेजेंट करके अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो उतनी ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। ये ट्रिक्स जनरली बताई जाती है इन योर पीएचडी इन योर मास्टर्स, बट अगर आप ग्रेजुएशन से इन्हें अडॉप्ट कर लोगे तो आपकी एक प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चे हम जब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन की, ये देखो अभी ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है ना, जब हमने थोड़ो बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे, वही सब देखो आपके नोट्स हैं कि अब डाटा विजुअलाइजेशन काम कहाँ आ सकता है। सबसे पहला आपका एकेडमिक रिसर्च में, ठीक है, कि अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, आपके जो भी हेड हैं आपने उनसे जाके बोल दिया, आपने प्रेजेंट कर दिया कि दिस इज माय डाटा, पर्टिकुलरली आपने 10-20 पेजेस दे दिए, फाइन। और एक वहीं पर स्टूडेंट है जिन्होंने 10-20 पेजेस के साथ क्या किया कि उन्होंने टेबल्स भी दिखाए, ठीक है, उन्होंने टेबल्स भी दिखाए, उन्होंने बार ग्राफ्स भी दिखाए, उन्होंने केस स्टडीज भी दिखाया और उन्होंने अपने पर्सनल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया वो भी शो किया। तो आप मुझे बताओ आपके प्रोफेसर को क्या ज्यादा अपीलिंग लगेगा, आपका रिसर्च या फिर उस स्टूडेंट का रिसर्च जहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा को प्रेजेंट किया गया इन एन इफेक्टिव मैनर, बताओ। उस स्टूडेंट का। वेरी गुड, बिल्कुल इजी हम गेट कर सकते हैं कि उस स्टूडेंट का द डाटा वेल, ठीक है। तो इसलिए डाटा विजुअलाइज करना रियली इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बच्चे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, हमारी इंडिया में जितनी भी कमिटीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स के, ठीक है, जब हमारा बच्चे बजट प्रेजेंट होता है तो आप उसके अंदर देखेंगे पाई चार्ट बहुत ज्यादा होते हैं कि सबसे ज्यादा एलोकेशन इस सेक्टर में गया। अच्छा, जब हम बजट की बात करते हैं तो ऐसा कोई बच्चा है वो यूज टू फॉलो द न्यूज़पेपर डेली या फिर गवर्नमेंट एडिटोरियल्स पढ़ते हैं? इस साल बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन हमने किसको दिया है? द मेजर पार्ट ऑफ आवर बजट इज एलोकेटेड टू विच सेक्टर? एनी आइडिया मैम? डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, यू कैन टाइप एनी ऑप्शन बिकॉज बच्चे करेक्ट करने के लिए डिस्कस कर जब हम बेटर करते हैं एनर्जी, वेरी गुड। तो बच्चे एनर्जी इज एन क्रूशियल पार्ट, हेल्थ सेक्टर इज एन क्रूशियल पार्ट, बट जब बात हम करें ना किसे सबसे ज्यादा एलोकेट किया, बच्चों हमने सबसे ज्यादा एलोकेट करा है अपने डिफेंस सेक्टर को, ठीक है। तो उसमें एक पाई चार्ट बनाया गया और उसमें दिखाया गया कि इस पाई चार्ट का जो मेजोरिटी पोर्शन है वो किसे एलोकेट किया गया? डिफेंस सेक्टर को, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो शो यू द बजट कि कैसे उसके अंदर से डाटा प्रेजेंट किया गया, उसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। स्कीम्स की बच्चे हम बात करते हैं तो उसमें स्कीम में सबसे ज्यादा किसे दिया गया पता है आपको? मनरेगा को, ठीक है, कि इतना अपने बजट का सबसे ज्यादा पार्ट स्कीम्स हम किसको दे रहे हैं? मनरेगा को दे रहे हैं। फिर कुछ एजुकेशन की स्कीम्स हम उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड बच्चा आपका क्या गिवन है? मार्केटिंग एंड कंज्यूमर एनालिटिक्स, वहां पर तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी भी शू ब्रांड, ठीक है, किसी भी कॉस्मेटिक ब्रांड से किसी भी परफ्यूम ब्रांड की जब देखते हैं, ठीक है, कि ये सेलिब्रिटी इसका मतलब कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, दे आर गिविंग द रिव्यूज, तो हम थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं उस तरफ, ठीक है, क्योंकि वो डाटा हमें बहुत अपीलिंग लगता है। फोर्थ आपका बच्चे हेल्थ केयर में बहुत काम आता है डाटा। हम कैसे ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अभी सबसे ज्यादा प्रोनेस अगर किसी कंट्री की है टुवर्ड्स द ओबेसिटी, एंड इफ आई टॉक अबाउट द हार्ट डिजीजेस, सो दैट इज आवर इंडिया, ठीक है। तो ये सब हमें पता कहाँ से पता चलता है? अपने डाटा को प्रेजेंट करने के बाद। और जैसे मैंने आपको बताया था पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, आई ऑल्सो शेयर्ड कि क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है। Geography and environmental studies, वो तो that can't be negotiated without the maps, without the GIS systems, right? And last one is your social sciences, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, बार ग्राफ्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, ये सब तो होता ही है, बट जो आप अपनी कॉमर्स में बच्चे पढ़ चुके हैं ना, असेट लायबिलिटीज का बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एक तरीके से दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाटा। ओके, गुड 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 जगजीत।
तो इस तरीके से हमने अपना सबसे बेटर बच्चे, मैं आपको बेसिक तरीका बताऊं, आपको डाटा प्रेजेंटेशन का देखना है ना, तो आप कहीं मत जाओ, बस अपना इंडिया का या तो इकोनॉमिक सर्वे ओपन कर लो, आई विल शेयर द पीडीएफ इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, या फिर आप उसमें इकोनॉमिक सर्वे के अलावा अपना बजट देख लो, तो उसके अंदर सारे डायग्राम्स आपको देख के पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे किस तरीके से क्या टूल्स यूज करती है टू प्रेजेंट देयर डाटा। ओके, अब हमने अच्छी अच्छी बातें तो बच्चे सारी कर ली, ठीक है, कि किस तरीके डाटा कैसा होना चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब थोड़ा इसका लिमिटेशंस का बात कर लेते हैं, जिसमें हमने एक टर्म डिस्कस किया था, दैट वाज, बताओ, जो मैनिपुलेट करता है डाटा को, व्हाट इज दैट कॉल्ड? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन कॉमर्स, बताओ बताओ बच्चे। मैम विंडो समथिंग था। विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अब लिमिटेशंस आप रीड करो एक बार, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, गुड जगजीत, एक बार लिमिटेशंस आप देखो। तो आज के बच्चे क्लास में जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, ठीक है, उस सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, along with the important PDF that I talk about in the class, that you will all get in your WhatsApp group, ठीक है। उसके साथ बच्चे, वैसे तो फोन में आप जिसे यूज करते हैं तो डाटा एक तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको डाटा, बेस्ट डाटा विजुअलाइजेशन इन द वर्ल्ड करके थोड़ा ना इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, करके आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके ही आइडियाज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व करा, क्या उनमें बेस्ट था, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, एंड आज थोड़ा सा जैसे डिले हो गया था, तो अब तो सब एड्रेस हो चुका है। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी वुड स्टार्ट द क्लास। आपका नेक्स्ट क्लास मैं आपको एक बार बता देती हूँ बच्चे, सो दैट यू वोंट मिस इट। इट्स ऑन 24। हाँ बच्चे, तो आपका 24 और 25 को क्लास होगा, फाइन, फ्रॉम 11 to 1 PM। Am I clear to all? ठीक है, तो विल मीट ऑन 24 एंड 25, तब तक अच्छा खासा टाइम है आपके पास। जो मैंने आपको आइडियाज दिए हैं उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, उसी से क्लास स्टार्ट करके, और जितने भी आपके एब्रिविएशंस हैं, डाटा प्रेजेंटेशन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को बच्चे? Yeah, you had to share any idea or anything, so I can hope that this is your first class. तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन आप थोड़ा ग्रैप्स करेंगे, उसके बाद you can ask your doubts and your ideas in your next class. And I will be really happy if you will share about your new ideas and innovation that I had discussed. Okay? अच्छा, विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का बच्चे मैं आपको ना एक केस स्टडी ही दिखाती हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है केस स्टडी की। अडानी कंट्रोवर्सी पता है आप सबको, हिडनबर्ग पेपर्स बच्चे?
उसमें क्या हुआ था कि एक वर्ल्ड का बच्चे इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है हिडनबर्ग, ठीक है, यूएस। तो उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि अडानी क्या हुआ बच्चे, हमारा अभी इस समय इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, अंबानी, ठीक है, उससे ऊपर पोजीशन पर अडानी पहुंच गया एंड ही बिकेम इन द लिस्ट ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो होने के बाद क्या हुआ कि हिडनबर्ग जो यूएस का इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने रिसर्च करा, हाँ वेरी गुड, इट शट डाउन नाउ, और उन्होंने ये बताया कि अडानी ने क्या करा है कि अडानी ने अपने डाटा को मैनिपुलेट करा है, अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखाई है, अपने प्रॉफिट्स ज्यादा दिखाए हैं, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बताया, और इस वजह से जो इन्वेस्टर्स है उन्हें फूल किया जा रहा है, ठीक है। अब इससे पहले कि बच्चे सेबी इस पे इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि सेबी इज द एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टॉक मार्केटिंग इन आवर कंट्री, ठीक है, वो ही सब गवर्न करता है। उससे पहले बच्चे हिडनबर्ग की कंट्रोवर्सी सुन के ना इन्वेस्टर्स का बिल्कुल, हम एक बात करें, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट छूट गया। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी शेयर सेल करने स्टार्ट कर दिया। इस वजह से जो अडानी टॉप रिचेस्ट में चले गए थे, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में आ गई उनके एंटरप्राइज की। अब सेबी क्या कर रहा था कि हर एक चीज पे प्रॉपरली अगेन इन्वेस्टिगेशन की इज इट वर्थ और नॉट, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या पाया गया कि जो भी उनकी एसेट, उनकी प्रेजेंटेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, और हिडनबर्ग के पेपर्स को क्या कर दिया गया कि दे आर नॉट जस्टिफाइड रिसर्च, ठीक है, कि जो भी उन्होंने पेपर्स दिए दैट आर नॉट ट्रू एज पर देयर ऑब्जर्वेशन। तो सेबी को ऑब्वियसली फॉलो किया गया इन द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। तो अडानी की शेयर प्राइस बच्चे जो बहुत नीचे चला गया था, वो सडनली हाईएस्ट एवर, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में गया, क्योंकि बच्चे सडनली जब पता चला कि द इन्वेस्टिगेशंस आर फॉल और ऑन दैट कि कोई विंडो ड्रेसिंग का सीन नहीं है, ठीक है, तो इंडस्ट्री, तो ज्यादा लोग दौड़े, ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए, कि जिससे कि भाई प्रॉफिट तो सभी को चाहिए बच्चे, तो एकदम से शेयर वैल्यू हायर चली गई, ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ विंडो ड्रेसिंग। आप अडानी की कंट्रोवर्सी को मेंशन कर सकते हैं केस स्टडी में, ठीक है। हाँ बच्चे, सेबी आप देखो 1992 में स्टैब्लिश किया गया टू गवर्न दिस प्रॉपर एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है, क्योंकि बच्चे एक्सचेंजेस, इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज, इट इज एन रियली क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। आपकी बच्चे गवर्नमेंट कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, प्राइवेट प्लेयर्स कैसा भी परफॉर्म कर रहे हो, बट अगर एक भी शेयर में डिस्टरबेंस होता है ना, तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को हार्म होता है, ठीक है। या अगर एक भी या दो भी शेयर्स में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो वर्ल्ड प्लेयर्स होते हैं वो हमारी इकोनॉमी में आते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ठीक है। अब समझ में आ गया बच्चे अच्छे से विंडो ड्रेसिंग? ओके, चलो we'll stop our class now. Okay, thank you class for such an interactive session. I am looking forward for your next class on 24th of November. Okay, thank you class.